Welcome guys. In this video, we will learn about the concept of race. Race as a basis of social stratification. In the previous videos, we have learned about caste, class as a basis of social stratification, and in this video, we are going to talk about race. So इस वीडियो में हम देखेंगे रेस एज ए बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, यानी रेस के बेस पे सोसाइटी में कैसे स्ट्रेटास होते हैं, कैसे इनइक्वालिटी होती है। तो पहले देखते हैं कि रेस होता क्या है। सो रेस refers to a category of people who share some similar physical characteristics like skin color, facial characteristics and stature etc. मतलब रेस उन लोगों को एक ग्रुप होता है, एक लोगों का ग्रुप अगर है जिनको कुछ डिस्टिंक्टिव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल का कलर है, स्किन का काला है, ब्राउन है या वाइट है, या फेशियल फीचर्स कुछ डिस्टिंक्टिव है, यानी फेस का जो स्ट्रक्चर है, उसका फिजिक है, किसी पर्टिकुलर टाइप का है, या उनका स्टेचर जो है टॉल है, शॉर्ट है, मीडियम है। उस बेस पे जो कोई करेक्टराइज करते हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल को हम, तो उसको हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन है रेस की, आपको समझ आएगा अगले सेक्शन उसमें जब हम इसको इलाबरेट करेंगे। Scientific theories of race arose in late 18th and early 19th century. रेस के बारे में डिस्कस करना या डिस्कोर्स जो भी वजूद में आया वो 18th और 19th सेंचुरीज़ में आया, क्योंकि इन्हीं सेंचुरीज़ में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, जिसने बाकी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में थी उन पे अपना जो कॉलोनाइज करना शुरू किया था, तो उनको उसको जस्टिफाई करने के लिए जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था उसको हम बोलते हैं वाइट। So race, it can be said as a product of colonization, because when Europeans supported their regimes all over the world, they had to justify their superiority against the indigenous people. So it is said that this can be the justification which lent them superiority over others. मतलब इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो दुनिया पे कब्ज़ा करना शुरू किया था, उनका कहना था कि जो बाकी लोग हैं कंट्रीज़ के वो इन्फीरियर है और ये हमारा हक बनता है कि उनको सिविलाइज करना। अगर रेस की बात की जाए तो सोशोलॉजिस्ट्स या बायोलॉजिस्ट जो हैं उनके दरमियान हमेशा ये कंट्रोवर्सी रहती है कि बेस किसको बनाएं, क्या वेदर रेस इज़ बेस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स और सोसाइटी, और इज़ इट सोशल कंस्ट्रक्शन, or is it based on some biology or genetic makeup. So there is a controversy among the scholars concerning this. Although there are certain physical features which led to development of racial categories, but anthropologists, sociologists and many other such biologists, they question the value of these categories and thus the value of biological concept of race. They claim that the basis of race is sociological or social construction. A famous scholar called Count Joseph Arthur de Gabinier, who is sometimes called as the father of modern racism, he has proposed three races: white, black, and yellow. According to him, the white races possess superior intelligence, morality, willpower, and it is these inherited qualities that underlie the spread of Western influence across the world. The blacks, by contrast, are the least capable, marked by an animal nature, a lack of morality, and emotional instability. The ideas of Gabinier and other proponents of scientific racism influenced Adolf Hitler like authoritarians later on. सो जोसेफ अर्थर डी गेविनो का कहना है कि जो ब्लैक पीपल होते हैं इनमें विल पावर, मोरलिटी, इंटेलिजेंस ये सब कम ओहदे पे पाया जाता है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय सम एनिमलिस्टिक नेचर, उनमें मोरलिटी कम होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। ये किसका कहना है? जोसेफ आर्थर डी गेबेनियो। बट ऑल दिस इज negated by sociologists or social scientists. As we can see, all this was abundant, or this race science was thoroughly discredited
In biological terms, there is no clear-cut races, only a range of physical variations in human beings exist there. And it is said that the differences in physical type between groups of human beings arose from population inbreeding, which varies according to the degree of contact between different racial or social or cultural groups. यानी जो डिफरेंस होती है पॉपुलेशन के दरमियान, जो भी फिज़िक का जो डिफरेंस आता है वो क्यों आया है, क्योंकि जो डिफरेंट रेशल ग्रुप से उनके दरमियान इंटरमेरेज हो गई, उनके दरमियान इंटरब्रीडिंग हो गई, और जो भी जनरेशन्स आई तो उनमें उनकी जो मतलब फिज़िकल फीचर्स थे वो डिफरेंट आए. It is also said that the genetic diversity within the populations that share visible physical traits is as great as the diversity between them. In the light of this evidence, the scientific community has virtually abandoned the concept of race. ये कहा जाता है कि जो इंटररेशल, फॉर एग्जांपल दो रेशल ग्रुप से, उनके दरमियान जो जेनेटिक डिफरेंस है वो उतनी ही है जितनी कि एक ही ग्रुप में जो भी पॉपुलेशन है उनके दरमियान है. यानी एक ही रेशल ग्रुप है जिसमें जो भी लोग रहते हैं उनके दरमियान जो भी जेनेटिक डिफरेंस है उतनी ही उनके दरमियान है. जो फॉर एग्जांपल दो रेशल ग्रुप्स हैं ए एंड बी, इनमें जो लोग हैं और इनमें जो लोग हैं, इनके दरमियान जो भी आपस में रेशल डिफरेंस है या सॉरी जेनेटिक डिफरेंस है वो इनके दरमियान भी है, यानी इस ग्रुप और इस ग्रुप में. इसीलिए जो फिर जो जेनेटिक बेस ऑफ रेस है उसको अबंडन किया गया था, उसको डिस्क्रेडिट किया गया है लेटर ऑन. That is why many social scientists concur or argue that race is nothing more than an ideological or social construct whose use in academic circles perpetuates the commonly held false belief that it has a grounding in reality. ये जो रेस है ये आइडियोलॉजिकली बनाई गई है, यानी सोसाइटी में लोगों ने इसको बनाया है, अपने आप में इसमें कुछ सुपेरियरिटी इन्फीरियरिटी है ही नहीं, जिसको परपेचुएट करते हैं कम्युनिटी में कि इसकी कोई ख़ास रियलिटी है. असल में इसकी रियलिटी नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन है या आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है. ये कहा जाता है कि जो डिफरेंसेस फिजिकल फीचर्स ह्यूमन बींग्स में तो होते ही है, सबको पता है, लेकिन वाई सम डिफरेंसेस आर मेड एज बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन वाइल अदर्स आर नॉट. स्किन का कलर जो है उसको बेस किया बनाया जाता है कि जिसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, लेकिन हेयर का जो कलर है इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है. इसलिए हम बोलेंगे कि जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स को बेस बनाया जाता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कुछ को नहीं. So that is why we can call it is a social construction of discrimination. There is nothing real per se in it. So in conclusion, we can say that race developed as a tool to classify people into different categories. But the concept pure and impure in race used by leaders like Hitler attach it a meaning to such classification of superiority and inferiority. There are certain examples in history. Jewish Holocaust. फॉर एग्ज़ाम्पल हिटलर जो जर्मनी था, उस जर्मनी में था, उसने ज्यूज़ को कत्ले आम किया था रेस के बेस पे. या अपार्थेड जो है साउथ अफ्रीका में जो भी ब्लैक्स थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था किसके हाथों, जो वहाँ पे अंग्रेज़ लोग थे, यानी वाइट्स वहाँ पे सिर्फ 13% थे जो कि रूल करते थे पूरे साउथ अफ्रीकन पे. तो ये दो एग्जांपल्स हमने बताए कि जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन में थी, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मानी जाती है. सो हमने देखा कि रेस कैसी किसको कहते हैं. सो हमने देखा कि रेस की डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन क्या है कि और रेस की जो कंट्रोवर्सी है कि सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इसकी बेस जो है वो है सोसाइटी और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ इट, एंड बायोलॉजिस्ट जो बोलते हैं कि इसकी जो बेस है वो जेनेटिक है और बायोलॉजी. बट हमने ये जाना कि जो मतलब ज़्यादा जो क्या जाता. सो ये था रेस के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने जाना कि रेस होता क्या है और रेस के मुतलिक जो भी कंट्रोवर्सी है अमंग बायोलॉजिस्ट्स एंड सोशोलॉजिस्ट्स, जो कहते हैं कि जो रेस है इसकी बेसिस जीनस नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है
जिसके बेस पे लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ज्यूज़ के में जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जो हिटलर ने शुरू की थी, या साउथ अफ्रीका में जो हमने एग्जांपल बताई। सो दिस वाज फॉर द टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टे ब्लेस्ड।